Now, when we talk about sustainable energy, when we talk about renewable energy, what comes in our mind? Energy from resources that are inexhaustible. कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये रिसोर्सेज रहेंगे. पेट्रोल, डीजल, कोयला ये तो खत्म होने वाले हैं. पहले हम आज के 25 साल पहले कहते थे कि अगले 25 साल में खत्म हो जाएंगे. अभी हम कह रहे हैं कि अगले और 25 साल में खत्म हो जाएंगे. परंतु जो सोलर एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, जो बायोमास एनर्जी है, जो वाटर एनर्जी है, ये तो जब तक कि पृथ्वी रहेगी तब तक रहने वाले हैं. ये दीज आर रिप्लेनिश नेचुरली. ये खत्म होते हैं, यूज होते हैं, वापस रिप्लेनिश हो जाते हैं. इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत कम है. ये पॉल्यूशन ही फैलाते हैं. कैन बी हार्नेस्ड लोकली, देयरफॉर यूजफुल फॉर areas where modern energy sources have not reached. Even modern energy sources have reached there. It is better to use the locally available resources because it will reduce the greenhouse gas emissions. What it happens that it opens new avenues for livelihood, especially for rural population closer to home, thereby reducing migration. And common sustainable energy sources include solar, hydro, biomass, wind energy, and this energy harnessed from tides, earth, and biomass are less commonly used, but slowly, the importance of these other renewable energy resources is also increasing. So historical development, if we see in renewable energy sector in our country, India was the first country who had a separate ministry in government of India on renewable energy. At that time in 1981, the first Department of Non-Conventional Energy Sources (DNES) was established in 1981, and it started functioning in 82. And all over the world, India was the only country which had a separate ministry of non-conventional energy sources. And slowly moving to ahead of that, our program, the major program of this DNES, Department of Non-Conventional Energy Sources, at that time was biogas program, because at that time also India was full of villages. Today we are having about 7 lakh villages. How many cities we are having? अगर बड़े शहर की बात करें तो 100 शहर होंगे, 100 cities. अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो देयर आर ओनली 750 डिस्ट्रिक्ट्स, नाउ 800 डिस्ट्रिक्ट्स, बट विलेजेस 700,000, 7 लाख गांव है. सो अगर बड़े शहर की बात करें तो खाली 100 हैं और गांव 7 लाख हैं. कितना डिफरेंस है. अभी भी 68% ऑफ आवर पॉपुलेशन रिजाइड इन विलेजेस. तो इसलिए गांव में एनिमल्स भी होते थे. When India became independent in 1947, human animal ratio was 1:1. 32 करोड़ लोग थे, 32 करोड़ जानवर थे. करो आज हम कितने आदमी हो गए हैं? 130 करोड़, 130 करोड़. जानवर कितने हैं? जानवर वही 30 करोड़ की 30 करोड़. It means the human animal ratio, which was 1:1 in 1947, today shrinks to 1 is to 4.5:1. मतलब पहले एक आदमी पे एक जानवर था, आज 4.5 आदमी पे एक जानवर है. तो जो इकोलॉजी है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जो सिनर्जी है, जो एनिमल्स में और आदमियों में और नेचर में, वो भी डिस्टर्ब हो गया है. So we have to think differently to control our climate change, and how we can do that, we will try to discuss in this lecture in next say 45 minutes to 1 hour. So sustainable energy sources, India is again leading in the world. आप देखिए कि
1981 में वी वर लीडर इन द बायोगैस टेक्नोलॉजी, और हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड इट एंड इट वाज अमंग द 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 80s to 2000, एंड वी वर हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट इन द वर्ल्ड 80s में और 90s तक। अभी आप देखिए कि इन लास्ट 4-5 years our focus is सोलर एनर्जी, और हमने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया जिसमें पूरी दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज है वो सारे मेंबर्स हैं, दूसरे कंट्रीज में मेंबर्स हैं। एंड यू इमेजिन अवर टारगेट 175 गीगावाट बाय 2020, और 2020 तक हमारा कितना टारगेट है, 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी, 10 गीगावाट ऑफ बायो पावर, 60 गीगावाट ऑफ विंड पावर एंड 5 गीगावाट ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स। So by 2020, we would like to achieve nearly 175 gigawatt from renewable energy resources, and this indicates 20.3% of our total energy requirements only through renewable energy. So slowly by next 10 years or 20 years, we would like to replace all fossil fuels with renewable energy, hydrogen energy. And as of May 21, अभी की हम बात करें तो nearly 95.66 gigawatt, which is contributed by small hydro projects, biomass power, urban and industrial waste power, solar and wind energy. So nearly 100 gigawatt we had achieved. And more important is 1.3 million jobs are estimated to be created by solar and wind sector and biomass sector if India realizes its target of 2020. तो एक स्टडी किया गया है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा, and it says that it is able to generate about 1.3 million jobs. अभी पूरे देश की सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरत क्या है आफ्टर कोरोना पेंडेमिक, कि हमको काम मिलना चाहिए, हमको रोजगार मिलना चाहिए, हमको लाइवलीहुड मिलना चाहिए। और देयरफॉर दिस renewable energy system having the potential of transforming our rural economy, क्योंकि उसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आज 12 करोड़ लोग पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हो गए हैं आफ्टर कोरोना पेंडेमिक। उन सबको काम चाहिए क्योंकि वो यूथ हैं, वो युवा हैं। अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो हाउ वी कैन मूव इन दिस डायरेक्शन? तो एन एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी दैट इट कैन हार्नेस लोकली। अब सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी चीज को एक जगह से आप दूसरी जगह लेके जाओगे तो उससे आपको ट्रांसपोर्टेशन लगाना पड़ेगा, आपका फॉसिल फ्यूल जलेगा और आप पॉल्यूट करेंगे एनवायरनमेंट को। In last say 20-30 years, all the productions are taking place in China, and what is happening is all major companies in the world are having their production centers in China. All the raw material and resources are transported from their continent to China. चाहे अफ्रीका हो, चाहे नॉर्दर्न यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे साउथ अमेरिका हो या एशिया हो, सभी लोग अपने रॉ मटेरियल्स को चाइना ले जाते हैं, वहाँ फिनिश प्रोडक्ट बनता है। देन फिनिश प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड बैक टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल इन देयर मॉल्स। और उसकी वजह से कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है, यू कैन नॉट इमेजिन। और जो जिसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आफ्टर फिनिश प्रोडक्ट कॉस्ट, if the raw material cost and production cost is 1 rupees, it is when reaching to malls in Europe or America or Japan, its cost is 10 rupees. So 1 रुपए की चीज के हम 10 रुपए देने पड़ते हैं
क्योंकि मीडियम जो उसका सारी जो प्रोसेस चेन है, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जितनी सारी कंपनियां, जितने सारे एंटरप्रेन्योर, जितने सारी लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो जब तक 1 रुपए की चीज को आप 10 रुपए में नहीं बेचेंगे, तब तक वो उनके मार्जिन ही नहीं बनेगा सबको। तो लोकल चीज बनाने में, लोकली उसको कंज्यूम करने में, लोकली उसको हार्नेस करने में जो एडवांटेज है कि आपकी जो 1 रुपए की चीज है उसको आप 1.25 रुपए में बेच के भी आप प्रॉफिट का अर्न कर रहे हैं। जबकि जो प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें 1 रुपए की चीज को 10 रुपए में आप बेचते हैं, तब जाके सब लेवल पे प्रॉफिट पहुंचता है। और उससे जो एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसको हमको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये कुछ बातें थी। मैंने सोचा कि पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझाऊंगा और फिर अपने काम पे आऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। While there is a need to tap sustainable energy, it is equally important that decentralized systems be put in place which can generate good quality employment opportunities everywhere. ये बहुत ज़रूरी हो गया है। दुनिया में अगर इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं और अगर 100 करोड़ लोगों को काम नहीं मिलेगा तो देश की क्या स्थिति होगी, हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए आगे की दुनिया में 21st सेंचुरी में हमारा क्या मॉडल होगा डेवलपमेंट का, क्या मॉडल होगा एम्प्लॉयमेंट का, क्या मॉडल होगा एनवायरनमेंट का, इन सब के साथ हमको विचार करना पड़ेगा। Therefore, I talk about greenhouse technologies for a sustainable future. And with increasing awareness, people are trying to act sustainably in the way paying attention to recycling, using public transport, buying local goods. While a movement for greener future is recognized, we have a lot of ground work to sustainability. And therefore, green technologies hold the power to guide humankind in that direction. कि हमको इस तरह का काम करना है कि जिससे कम से कम हमारा पॉल्यूशन फैले, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोग एम्पावर में हों। इन प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन, what is happening is कि only 100 corporate houses in the world are controlling the resources of the world more than say 70% resources of the world. पूरी दुनिया में खाली 100 कॉर्पोरेट हाउसेज पूरी दुनिया के 70% रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर रखे हैं। और जो द रिच आर बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर। दिस इज नॉट ए गुड सिचुएशन फॉर लाइवलीहुड फॉर ह्यूमन काइंड। Therefore, there is a need to change the whole system, and first system is environmental system. How we can improve this environment, and COVID-19 has taught a lesson कि आप देखिए कि एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स को, पूरी दुनिया के एनवायरनमेंट को, पूरी दुनिया के काम करने के तरीके को बदल दिया। आप देखिए कि आप हाथ नहीं मिला सकते, आप गले नहीं मिल सकते, आप किसी के घर के जाके खाना नहीं खा सकते, सब दूर दूर रहना चाहते हैं। और वो कोविड प्रोटोकॉल है कि आप दूर दूर रहिए। जिसकी वायरस को आप आंखों से देख नहीं सकते, उसने पूरे दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है, इकोनॉमिक सिस्टम को बदल दिया है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि नेचर इज मोर पावरफुल, नेचुरल सिस्टम्स आर मोर पावरफुल देन ह्यूमन सिस्टम्स, देन मैन मेड सिस्टम्स। हम चाहे चांद पे चले जाएं, चाहे मार्स पे चले जाएं, हमको ये मानना पड़ेगा कि नेचर इज मोर पावरफुल देन ह्यूमन बीइंग, देन टेक्नोलॉजी। और उसने दिखा दिया खाली 1.5 साल में कि किस तरह से नेचर इज मोर पावरफुल। तो मैं सबसे पहले जो वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा सिस्टम है वो किस तरह से मैनेज हो, उसमें कि कुछ साल पहले आमिर खान जी ने एक स्टोरी बनाई थी। उसकी एक क्लिप 2 या 3 मिनट की आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आए कि द वेस्ट विच वी आर जनरेटिंग इन अर्बन एरियाज मेनली, what impact it is having on our environment.